Okay, so first question for the part test 6. Remember, MCQs you need to show the basic working. ठीक है, basic working थोड़ा show करना है. Question number 1 जो दिया हुआ है, this is a very important question. It says that 64 small water droplets, each of capacitance C and charge Q coalesce to form a larger drop. The charge and the capacitance of the droplets. Remember, the capacitance of any sphere is given by 4 pi r epsilon naught r. 4 pi epsilon naught r. So C is directly proportional to radius. तो रेडियस जैसा होगा उसके हिसाब से कैपेसिटेंस चेंज करेगा. ऑलराइट, अब एक एक में अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, सो टोटल चार्ज विल बी 64 into Q. That's it. 64 into Q करने से you get the total amount of charge. Now the next thing is कैपेसिटेंस. तो उसके लिए हम लोग को पूरा स्फीयर का जो बड़ा जो स्फीयर होगा, 64 ड्रॉपलेट्स जो ज्वाइन करके बड़ा स्फीयर बना है, वो बड़ा स्फीयर का रेडियस निकालना पड़ेगा. So how do you find out that? By conserving the volume. तो 64 into 4/3 pi small r cube is equal to 4/3 pi capital R cube. So 4/3 pi cancels and capital R comes out to be कतो 4 into R. ठीक है? So therefore C dash will be 4 into C. क्योंकि रेडियस भी 4 गुना बढ़ गया है, तो कैपेसिटेंस भी 4 गुना बढ़ जाएगा. So the answer will be 64Q, 4C. This is option C, 1 का part C. Second question, two capacitance C1 and C2 are connected in parallel. If the charge Q is given to assembly, the charge gets shared. The ratio of the charges on Q1 and Q2. So you know, when in parallel connection, V is same. So Q1 is equal to C1 by V. And Q2 is equal to C2 by V. So Q1 by Q2, what is by? C1V and this will be C2V. Q equal to CV, right? तो C1V और C2V होगा, तो Q1 by Q2 करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा? C1 by C2. V1 cancels, C1 by C2. So option A is correct. 3. A wire is placed 1% while volume remains constant. So over here the options are a little change, a little difference in option is given. The options are given as resistivity. Resistivity increases, resistivity decreases. Actually resistivity does not change. When you stretch, resistivity change, resistance change करता है. तो the change in resistance delta R by R is given by delta L by L minus delta A by A. Remember, R equal to rho L by A. वहीं से ये वाला एक्सप्रेशन आता है, राइट? अब if L increases by 1%, वॉल्यूम कंजर्वेशन के हिसाब से V equal to A into L होता है. So we get delta V by V equal to delta A by A plus delta L by L, right? So वॉल्यूम कंजर्व है, मतलब delta V by V 0 है. तो डेल्टा एल बाई एल अगर 1% है, तो डेल्टा ए बाई ए 1% होगा. डेल्टा ए बाई ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एल बाई एल, मतलब -1%. ठीक है, तो यहां पर पुट करेंगे तो ये 1% माइनस ऑफ -1%, सो दैट इज 2%. माइनस प्लस 2% हो जाएगा. समझ में आया? सो द आंसर इज इट विल इंक्रीज बाय 2%. पॉजिटिव 2% आ रहा है. पॉजिटिव 2% का मतलब क्या है? इट विल क्या इंक्रीज बाय 2%. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. हो गया? Question number 4. See the Wheatstone bridge format which is given is balanced. Wheatstone bridge is balanced. Therefore, current through the galvanometer is 0. Current through the galvanometer is 0. Alright. So this is 4 option का 4 का ऑप्शन क्या होगा? D. अच्छा 5. Now what is 5? 5 में क्या होगा? Question number 5. Concentrate. Question number 5.
यहां पर बोला है द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडियस आर, व्हाट एनर्जी व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डबल्ड, व्हाट इज द न्यू रेडियस। तो चार्ज पार्टिकल जब घूमता है तब रेडियस क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस, आर इक्वल टू mv by qb। so what happens if its energy is doubled, एनर्जी इज डबल्ड का मतलब क्या है, पहले मान लो एनर्जी E1 था, अभी एनर्जी जो है E2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E1। अब ट्वाइस ऑफ E1 मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, सो हाफ m I can write this as √2v the whole square, means उसका वेलोसिटी जो है वो पहले जितना था उसका √2 टाइम्स हुआ है, इट बिकम्स √2 टाइम्स ऑफ दैट। सो इफ इट बिकम्स √2 टाइम्स ऑफ दैट, then the radius r dash will also be m into √2v by qb, मतलब new radius r2 you can say। so ये क्या हो गया, it is √2 times the initial radius, so it will be √2r and option A is correct। is that clear? next question number 6 में क्या बोला है कि a straight conductor of 0.5 is placed in a magnetic field and the magnitude and direction of force, so you know force F on a straight current carrying wire is given by IL cross B। तो यहां पर देखो करंट जो है वो x एक्सिस में है, so IL का वैल्यू है 1 into 0.5 I cap, क्रॉस B है 2I plus 4J। so you know I क्रॉस ये वाला करने से I क्रॉस I 0 होता है, I क्रॉस J क्या होता है, K कैप होता है, I क्रॉस J K कैप होता है, so I क्रॉस J होगा, सिर्फ इसके साथ क्रॉस नहीं होगा, I क्रॉस I 0 होगा। so 0.5 into 4 कितना होता है, that is 2 K cap। so K cap means positive Z direction, so answer will be 2 Newton along the positive Z direction, that is option A। 6 का option A correct है। next 7, an alpha particle and a proton having same momentum enter into a region of uniform magnetic field moving in a circular path, the ratio of the radii of curvature। तो ये भी एक सेम कंसेप्ट के ऊपर ही सम हो गया है। 7 का रेडियस इज mv by qb। अब बोला है कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन इसका रेशियो चाहिए r अल्फा by rp। तो देखो दोनों का मोमेंटम सेम बोला हुआ है, द मोमेंटम इज गिवन सेम। अगर मोमेंटम सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं ये mv दोनों का सेम हो जाएगा, सो q जो है ये अल्फा और rp के लिए अलग है, बाकी सब सेम है, तो q के हिसाब से रहेंगे ये, मतलब दिस विल बी इक्वल टू qp by q अल्फा। ना यू नो qp प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है e, और अल्फा में चार्ज होता है ट्वाइस e, सो इट कैंसल्स ऑफ गिव्स यू हाफ। इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में क्या हो रहा है देखते हैं। Question number 8. A straight conducting wire of length L meter carrying a current I is bent in the form of a semicircle। मतलब एक स्ट्रेट वायर था, हम लोगों ने उसको सेमीसर्कल में बेंट किया है। अब पूछा है कि ये सेमीसर्कल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए इसका सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हाउ मच विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। तो वो कैसे निकाल रहे हैं, ये सेमीसर्कल का जो आर्क लेंथ है, यू नो इट इज पाई इनटू आर, राइट, और उसका लेंथ कितना दिया हुआ है L। तो हम लोगों को रेडियस कितना मिल गया L बाय पाई, राइट। अब पूरा सर्कल के लिए उसका सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2r, राइट। पूरा सर्कल के लिए सेंटर में म्यू नॉट I बाई 2r होता है, लेकिन हम लोगों के पास पूरा सर्कल है, सेमी सर्कल है, मतलब आधा होगा उसका, राइट। अब ये r की जगह में हम लोगों को क्या डालना है, ये डालना है, सो दिस इज म्यू नॉट I बाई 2 और r के जगह में L बाई पाई आएगा, तो पाई ऊपर आ जाएगा और ये 2 into 2 4 हो जाएगा। अब म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, 4 into 10 to the power, सॉरी 4 पाई into 10 to the power, बताओ -7, राइट। सो I into pi by 4L, 4 cancels off, so it is pi square I into 10 to the power -7 by L, that is option A। समझ आ रही है, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट
9 में बोला है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अच्छा 9 इंपॉर्टेंट है। सो 9 जो है इसमें बोला है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, करंट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 9 तो बोला है कि ये एक वायर है जिसका रेडियस a है और इसमें करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा जगह में। तो अगर हम लोगों को पूछा है a/2 में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो सिर्फ ये रीजन में जो करंट है वो उसके अंदर आएंगे, a/2 रीजन का करंट उसके अंदर आएंगे। सो अगर a/2 रीजन का करंट उसके अंदर आना है तो इसका मतलब क्या, कितना करंट है कैसे निकालेंगे, देखो पहले करंट डेंसिटी निकाल लेते हैं। J क्या है, I/A। अब सिर्फ ये रीजन का एरिया क्या होगा, इट विल बी I/पाई बने, सॉरी द टोटल करंट डेंसिटी पहले निकाल रहा है I/πa²। देखो इसका रेडियस a दिया हुआ है ना, हाँ, सो I/πa²। अब I इंक्लूडेड कितना है, I इंक्लूडेड इज J इंटू ये वाला रीजन का एरिया अगर a लेते हैं कैपिटल A तो J इंटू A। अब ये वाला रीजन का कितना रेडियस होगा, ये रेडियस a/2 दिया हुआ है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, the current is uniformly distributed over the cross section layer, the ratio of the magnetic field at B1 at a/2 and B2 at 2a। मतलब यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड पूछा है और एक कहां पर 2a पे, यहां पर एक पूछा है। सो दो जगह में मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ये दो चीज हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल रहे हैं, ये बाहर वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा करंट आएगा, लेकिन अंदर वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके लिए हम लोग को सिर्फ ये वाला रीजन का करंट लेना पड़ेगा। अब ये वाला रीजन का एरिया कितना होगा, πa/2 होल स्क्वायर। अब J क्या है, I/πa² इंटू πa²/4। तो a² पाई कैंसल्स ऑफ, इट कम्स आउट टू बी I/4। हाँ या ना, पहले बोले यहां तक समझ में आया। ये क्या निकाले हम लोग कि ये जो a/2 डिस्टेंस है यहां तक वो कितना करंट इंक्लूड करेगा अपने अंदर, मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया में से करंट का कितना पोर्शन फ्लो कर रहा है, क्योंकि I करंट ये पूरा एरिया में से फ्लो कर रहा है। I करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस होल एरिया, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द होल करंट, वी आर इंटरेस्टेड ओनली अबाउट द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू a/2 एरिया, a/2 रेडियस वाला एरिया। समझ में आया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B = μ0 I/2πd होता है स्ट्रेट वायर के लिए, हाँ या ना। अगर ऐसे भी नहीं करेंगे, हम लोग एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तब भी होगा। एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो वो क्या बताता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इक्वल टू μ0 I इंक्लूडेड, राइट। तो ये B कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू μ0 इंटू I इंक्लूडेड। सो B इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब ये सर्कमफरेंशियल लेंथ, सर्कमफरेंशियल लेंथ इज 2π इंटू a/2। You understand why? 2πr circumference 2πr होता है ना, so 2π into a/2 equal to μ0 into I included कितना निकाला हम लोगों ने, I/4। so B क्या आ रहा है बताओ, ये B1 ले लेते हैं, B1 दिया हुआ है ना, B1। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, it will be μ0 I/4πa। हाँ या ना, ये समझ आया। और जब a2a डिस्टेंस पे लेंगे तब क्या हो जाएगा, यही चीज, सेम चीज हम लोगों को करना पड़ेगा, सिर्फ ये जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl लिया है ये हो जाएगा, I'm just substituting from here, यहां से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, b2 into 2π into 2a is equal to μ0 into I। क्यों, क्योंकि b2 के लिए वो पूरा करंट ही उसके अंदर आएगा, सिर्फ रेडियस जो था वो रेडियस की जगह में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। Is that clear? So what will be the B2 magnetic field? It will be μ0 I/4a। So see, therefore B1 is to B2 is equal to 1:1। पूरा कैंसिल हो जाएगा, so the answer will be 1। नाइन का ऑप्शन बी इज करेक्ट।
10 is just a concept that the galvanometer is rolled over metal frame just to provide electromagnetic damping. Electromagnetic damping के लिए this is option B, electromagnetic damping. अच्छा 11 एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इसमें बोला हुआ है लेंथ, बहुत कुछ ब्ला 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 बहुत कुछ दिया हुआ है, इवन चार्ज भी दिया हुआ है, लेकिन इतना कुछ हम लोगों को चाहिए ही नहीं. क्यों? देखो बोला हुआ है कि विथ अ यूनिफॉर्म फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. टॉर्क क्या होता है बोलो? टॉर्क एक्सपीरियंस बाय P क्रॉस E, दैट इज PE sin थीटा, और U क्या होता है? माइनस PE. राइट. सो देयरफॉर अगर टॉर्क हम लोगों को बोला हुआ है U निकालने बोले हैं, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो U बाई टाउ इज इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस ऑफ cos थीटा बाई sin थीटा, मतलब cot थीटा माइनस ऑफ cot थीटा. सो हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस टाउ cot थीटा. तो दैट इज माइनस टाउ कितना दिया हुआ है? 4√3, और थीटा दिया हुआ है कितना डिग्री? 60 डिग्री. 60 डिग्री मतलब 1/√3. 60 डिग्री मतलब 1/√3. So √3 cancels, it's -4 joules. That's it. बस ये करना था हम लोगों को. समझ में आया ना? So ये हो गया एनर्जी. Calculate the potential energy of the dipole. What is the dimension of electric potential? ये तो पता है. Dimension of electric potential क्या है? Electric potential का dimension क्या? ml square t minus 3 a minus 1. ml square t to the power minus 3 a to the power a. Right. सही है, एकदम सही है. गुड जॉब. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अच्छा, ये वाला साइड हो गया सब लोगों का? किधर आएगा सर? ट्वेल्थ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत जनों ने बनाया, लेकिन बहुत जन मिस आउट भी कर गए. ये आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है -x² y माइनस xz³ प्लस 4, और पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करके x माइनस del v del y, सॉरी I कैप j कैप माइनस del v del z. ठीक है. So you do the differentiation, you know this partial differentiation. तो क्या किया जाता है इसके साथ? जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तब y z को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं. तो हम लोगों का del v del x क्या आएगा? del v del x will be minus 2xy and minus z³. ठीक है. x को वेरिएबल लेंगे, बाकी कांस्टेंट. del v del y क्या होगा? जब y को वेरिएबल ट्रीट करेंगे तब x कांस्टेंट होगा, -x². बस ये पूरा कांस्टेंट 0, ये पूरा कांस्टेंट 0. सिर्फ -x² होगा और बाकी पूरा कांस्टेंट 0 होगा. एंड देन del v del z इज इक्वल टू क्या होगा? सिर्फ z वेरिएबल है, बाकी दो कांस्टेंट है. तो यहां पर क्या आ जाएगा? -3xz². दैट्स इट. ठीक है. तो आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2xy प्लस z³ I कैप प्लस x² j कैप प्लस 3xz². ठीक है. क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस माइनस सारा कैंसिल हो जाएगा. एंड दैट विल बी योर आंसर. क्लियर? इसमें क्या होता है? ये वाला एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ना, ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है. हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये है, मतलब उसमें क्या होता है? x, y और z को z के रिस्पेक्ट में v को डिफरेंशिएट करना पड़ता है. तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तब क्या होता है? x को वेरिएबल ट्रीट करेंगे और y और z को कांस्टेंट लेंगे.
तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से क्या होता है 2x, ठीक है। और ये y जो है ये कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। सो y के जगह में रहेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर x डिफरेंशिएट करने से 1 आता है और z क्यूब जो है वो रह जाएगा, और ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करने से 0 आता है। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में करेंगे, सिमिलरली z के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। अच्छा 12th पार्ट बी, शो दैट द 12th पार्ट बी इज अ सिंपल, छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा पोर्शन में ही करना पड़ेगा। जब भी ऐसे दो पार्ट पोर्शंस रहता है, यू हैव टू डू इट इन शॉर्ट। शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो यू जस्ट नीड टू से दैट let there be 2 points on the equipotential surface having distance between them as dr. Distance between them as dr. Therefore, dv is equal to minus e dot dr. That is minus e dr cos theta. ठीक है। Now dv equal to 0. क्यों? Since equipotential surface, ठीक है। So therefore E dr cos theta equal to 0 implies cos theta equal to 0. क्यों? क्योंकि E और dr दोनों ही 0 नहीं है। So cos theta equal to 0 का मतलब है theta equal to 90 degree. Therefore E is perpendicular to dr. That is E is perpendicular to equipotential surface. Equipotential surface. This completes your answer. एक मार्क भी कहीं पर कटने का जगह नहीं है, ठीक है। सुनो, now question number 13. Question number 13 is a डिराइवेशन। थोड़ा ध्यान से देखना, जब भी कोई डिराइवेशन कर रहे हो, दो चीज बहुत ध्यान से रखना, उसके साथ कोई एसोसिएटेड क्वेश्चन है या नहीं। बहुत लोगों ने डिराइवेशन कर दिया, लेकिन स्टेट गॉस थ्योरम था एकदम पहले, वो स्टेट नहीं। हाँ, तुम तो कुछ आता नहीं है तुमको, तो जो गॉस थ्योरम आता था वो लिख दिया बस, और कुछ नहीं। पकड़ के पीटेंगे, सारा जो डिराइवेशन है, डिराइवेशन सारा करके नेक्स्ट क्लास हमको दिखाना हो, नहीं तो पीटेंगे हम पकड़ के एकदम, बोल के रख रहे हैं, क्लास से निकाल देंगे, हम बोल के रख रहे हैं, एकदम क्लास से निकाल देंगे। जिन लोगों का डिराइवेशन अच्छे से नहीं हुआ है, सारा डिराइवेशन असाइनमेंट में एग्जाम में जो था वो करके फिर मुझे दिखाना। अच्छा मेरा बात सुनो ध्यान से, जब भी कोई लॉ स्टेट करने बोला जाएगा ना, whenever they ask you to state a law, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लॉ को वर्ड्स में लिख दो फुल मार्क्स, या उसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ वो लॉ का एक्सप्रेशन डाल दो फुल मार्क्स। दोनों लिखोगे एक साथ तभी फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब पहले वर्ड डिस्क्रिप्शन, देन इक्वेशन, देन इक्वेशन, दिस विल गिव यू द फुल मार्क्स। समझ में आया? दो चीज वहां पर डालना पड़ेगा, नहीं तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। और जो इक्वेशन लिख रहे हो उसमें कौन सा अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी लिखना पड़ेगा। यस सर, यस सर, नहीं तो एकदम मार्क्स नहीं मिलेगा। ये पूरा चीज के लिए सिर्फ 1 मार्क रहेगा, लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक मिस हो गया तो हाफ मार्क बस, और बाकी हाफ मार्क नहीं मिलेगा। समझ में आया? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थियोरेटिकल फिजिक्स में मार्क्स स्कोर करना वेस्ट बंगाल बोर्ड में बहुत डिफिकल्ट है। अगर तुम सारा चीज नहीं लिख रहे हो, सब जगह में मार्क्स काट के पूरा एकदम निकाल देंगे, कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ में आया? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन राइटिंग आउट डेफिनेशन एंड डिराइवेशन। न्यूमेरिकल में सिर्फ लिख दो आंसर, पूरा फुल मार्क्स, एकदम सिर्फ न्यूमेरिकल बना दो फुल मार्क्स। लेकिन डेफिनेशन, डिराइवेशन, लॉ ये सब लिख रहे हो तो वहां पर क्या क्या चीज होना चाहिए ये क्लियरली तुम लोगों को पता होना चाहिए। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है? क्या
कोई भी अगर लॉ तुमको पूछा जाए उसका वर्ड डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, उसका इक्वेशन देना पड़ेगा, इक्वेशन में डिनोमिनेशंस देना पड़ेगा, मतलब कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, फिर डिराइवेशन में यू हैव टू गिव डिनोमिनेशन एट एवरी स्टेप। कोई भी डिनोमिनेशन मिस नहीं होना चाहिए, मतलब एक इक्वेशन लिख दिए लेकिन उसमें कौन सा अल्फाबेट क्या है वो नहीं लिखे, मतलब पूरा डिराइवेशन सही होगा फिर भी तुमको 0 मिलेगा, 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट अ स्पेयर 1 मार्क्स ऑल्सो। तुमको सारा स्टेप्स में कौन सा क्या डिनोमिनेट करता है, आई क्या है, वी क्या है, आर क्या है, सब कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिराइवेशन में मार्क्स नहीं मिलेगा। So when you are practicing the derivation at home, you have to be careful कि हम सारा जो denominations है properly place किया है या नहीं किया है। Is that clear? I'll check your copies next class. याद रहे। Next डेरिवेशन है सर, कैसे करेंगे सर? क्या? बहुत सारे डेरिवेशन। हाँ, तो जो डेरिवेशन सारा नहीं बोल रहे हैं कि ये टेस्ट पेपर में जो डेरिवेशन मैंने दिया था वो डेरिवेशंस प्रॉपर्ली लिख के ला, समझ में आया? और जो टॉपिक का रिवीजन जब हो रहा है उसका डेरिवेशन प्रॉपर्ली लिख के ला, तो उसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, इसमें भी 2 पार्ट्स है। फर्स्ट यहां पर बोला है व्हाट फैक्टर्स डज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर सिर्फ उसका ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द 2 प्लेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट geometry of the capacitor, and second part permittivity of the medium between the plates, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, परमिटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और बहुत लोग एरिया, वॉल्यूम ये सब कुछ लिखे हैं लेकिन परमिटिविटी नहीं लिखे, तो हाँ तब मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अच्छा, सेकेंड पार्ट जो है इसका बी, इसमें किसका कॉपी में मैंने देखा पूरा उल्टा पुल्टा बना दिया है, थोड़ा ध्यान से देखो। बी में क्या बोला है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्ट किया गया है? सीरीज में क्या सेम होता है? चार्ज सेम होता है, ठीक है। सीरीज में चार्ज सेम होता है, ऑलराइट। चार्ज अगर सेम होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में अलग अलग होगा, राइट। सो पहला चीज ये है कि तुम यहां पर अगर ऐसे निकालना चाहते हो, देखो यहां पर तुमको बोला है कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, ठीक है। तुम अगर इसको ब्रॉड मेथड में निकालना चाहते हो तो पहले कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, टोटल कैपेसिटेंस, फिर दोनों के चार्ज कैलकुलेट करो, कितना चार्ज आ रहा है, फिर एक एक में Q इक्वल टू CV लगा दो, आंसर आ जाएगा। सो आई डू यू बोथ मेथड्स। मेथड 1 ये फर्स्ट मेथड है जिसमें हम लोग पहले कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। सीरीज में क्या होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2, राइट। तो ये क्या है 1/20 + 1/60, 1/60, 3 + 1 that is 4/60, मतलब 1/15। So C = 15 माइक्रोफैरड आ गया कैपेसिटेंस। तो C अगर इक्वल टू 15 माइक्रोफैरड होगा तो इसमें कितना क्या स्टोर होगा? चार्ज स्टोर होगा कॉम्बिनेशन में, वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके, राइट। Q = CV। सो चार्ज स्टोर्ड Q = CV। C कितना निकला है हम लोगों का 15, 15, और V कितना दिया हुआ है पता बोल, टोटल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 40। सो दिस इज 600 माइक्रोकूलम हो गया। अब इंडिविजुअल एक कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। देयरफॉर V1 = Q/C1, Q 600 है और C1 कितना है 20 माइक्रोफैरड, सो दैट विल बी 30 वोल्ट, और V2 = Q/C2, दैट इज कितना, बताओ कितना 600/30। हाँ 600/30, दैट इज 20
20 वोल्ट कैसे हो गया? 30 नहीं होगा, 600 बाई 10 होगा 10 होगा 60, 10 हाँ, वोल्ट राइट, 600 by 60 माइक्रोफैराड, तो दैट इज 10 वोल्ट। ऑलराइट, सो 30 वोल्ट होगा और एक 60 वोल्ट होगा। अनुराग सिली मिस्टेक कर दिया है, हाँ 30 नहीं लिखे, जीरो तो कैसे कैसे होगा? जीरो अच्छा, आप देखो ये जो मेथड है ये एक्चुअली थोड़ा ब्रॉड मेथड है, ठीक है, एक बहुत शॉर्ट मेथड है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एंड शॉर्ट मेथड। वो क्या है कि अगर मेथड 2, हाँ बोलो, हम लोग का मार्कशीट दे रहे मेथड 2 में क्या है, देखो कौन सा क्या, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है लेकिन इसको और थोड़ा शॉर्ट में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्या शॉर्ट? चुप करो। शॉर्ट मेथड में कैसे करेंगे? देखो तुम लोगों को पता है कि सीरीज में चार्ज सेम होता है, सो वी कैन से दैट V equal to Q by C, therefore V1 by V2 is equal to C2 by C1, right? अब C2 C1 कितना है? 60 और 20, मतलब ये 3:1 निकला। Therefore V1 equal to 40 into 3 by 4, that is 30, and V2 equal to 40 into 1 by 4, that is 10। कैसे आया? 3 by 4 क्यों आया? 3 plus 1 और ये 3 plus 1। You understood? रेशियो निकल गया, यहां पर रेशियो निकल जाने से उसका पार्ट बाय टोटल, यहां पर उसका पार्ट बाय टोटल, तो यहां पर हम लोग चार्ज वार्ज कुछ नहीं निकाले, सिर्फ डायरेक्टली निकाल दिए, 2 स्टेप में खत्म, फुल मार्क्स। ये करोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, मेथड 2 करोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए ज्यादा यूजफुल है। ये अगर तुम नॉर्मल थ्योरेटिकल में भी लिखते हो तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, और एमसीक्यू में तुमको करने में टाइम कम लगेगा, जल्दी हो जाएगा। सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि सीरीज है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, सॉरी पोटेंशियल चार्ज इन सीरीज चार्ज इज कांस्टेंट, सीरीज चार्ज इज कांस्टेंट, दैट्स इट। हो गया? अच्छा, सेकंड 15 का क्वेश्चन में ये बन गया, ये वाला पार्ट। 15 का क्वेश्चन में क्या बोला है? 15 का क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला है इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज अ लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर क्यों यूज करने बोला है? व्हाई डू वी यूज लॉन्ग वायर? लॉन्ग वायर क्यों यूज किया जाता है? सेंसिटिविटी, राइट। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो तुम इतना बड़ा लिख दिए, लॉन्ग वायर क्यों चाहिए, लेकिन तुम जो कीवर्ड है वो मिस कर गए, कीवर्ड नहीं लिखते, तो उसमें क्या होता है, सीबीएसई आईसीएसई में ना एकदम मार्क्स नहीं मिलता है। वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, लेकिन सीबीएसई आईसीएसई में कीवर्ड मिसिंग रहेगा तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। तुम एक पन्ना भी लिख दो, कीवर्ड नहीं रहेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए कीवर्ड लिखना जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो नहीं दिया मैंने, हाफ दिया। सो यू नीड टू राइट सेंसिटिविटी टू long wire is taken to increase the sensitivity. सर देखिए सर, Taken to increase the sensitivity. First part. अच्छा, सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है लेंथ एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर आर 4 मीटर एंड 10 ओम रेस्पेक्टिवली. It is connected to a cell of EMF 2 volt and another cell when joined in potentiometer null point is measured at 250 volt. So क्या होगा? You know that E1 by E2 is equal to L1 by L2. So E1 जो दिया हुआ है EMF 2 volt दिया हुआ है, और E2 जो है निकालना है हम लोगों को। L1 जो टोटल पोटेंशियोमीटर वायर है उसका लेंथ है 4 मीटर और L2 दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर। सो यू नो 250 सेंटीमीटर मतलब 2.5 मीटर, या इसको 400 बना दो, एक ही बात है। सो E2 इक्वल टू 2 इंटू 250 बाई 400। ये 4 मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो दैट कम्स आउट टू बी 1 पॉइंट कितना आ रहा है? हाँ 1.25, राइट, 1.25 वोल्ट, 1.25 वोल्ट, बस बात खत्म।
15 डन। अच्छा 16 कर्शॉफ्स लॉ है। कर्शॉफ लॉ का ये सम बहुत इजी है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने बहुत जनों ने किया है, किया नहीं है, मिस्टेक किया है, ये सब करने से कैसे चलेगा? इतना इजी क्वेश्चन है कर्शॉफ लॉ का। 3 मार्क्स पूरा मिलेगा। यहां पर एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। टू वोल्ट 2 ओम 2 वोल्ट 2 ओम 2 वोल्ट 2 ओम। अब देखो यहां पर सिर्फ डिटरमाइन बोला हुआ है, तो तुम कर्शॉफ्स लॉ भी यूज कर सकते हो, या यू कैन ऑल्सो डू इट अदरवाइज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। लेकिन आई विल आस्क यू पर्सनली टू डू कर्शॉफ्स लॉ ओनली, ठीक है? तो देखो अगर मैंने A B C D E F मार्क कर दिया और I जो करंट पूछा है वो मार्क कर दिया है लोगों ने, ये करंट I है, ठीक है? सो आई विल से कि ये करंट I यहां पर दो पार्ट में मान लो डिवाइड हो रहा है, I1 और I2। सो फर्स्ट जंक्शन लॉ के हिसाब से I इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट? I इक्वल I1 I2। नाउ in loop ABEFA, ABEFA, can you see ABEFA? ABEFA, हाँ ठीक है। झटपट देखो ABEFA में if I starting from A to B कुछ नहीं है, B से E में आएंगे तो फर्स्ट में 2 वोल्ट है पोटेंशियल राइज, प्लस 2 यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप, माइनस 2I। 2I का मतलब है, एक बार में लिख देते हैं I1 प्लस I2, मतलब 2I होना चाहिए था। मैंने एक बार में I इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखे थे ना वहां पर, तो डाल दिया I1 प्लस I2 और इज इक्वल टू इधर, अच्छा सॉरी, प्लस यहां पर आके 2 माइनस यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप 2I1 इक्वल टू 0, राइट? तो इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 2 कैंसिल होगा कॉमन लेके, फिर 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 2 वोल्ट आएगा। इज इक्वेशन 1। 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 2, ये इक्वेशन माइनस 2I1 होगा ना? ना माइनस नहीं, माइनस दोनों ही माइनस है ना, उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एकदम सही है, इक्वेशन कोई डिफरेंट रॉन्ग नहीं है। नाउ इन लूप BCDEB, BCDEB में पहले यहां पर पोटेंशियल राइज हो रहा है प्लस 2I2, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है माइनस 2, यहां पर पोटेंशियल राइज हो रहा है प्लस 2I1 प्लस I2 इंटू एंड देन पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है माइनस 2 इक्वल टू 0। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। इसका ये इक्वेशन क्या है? 2 है। मजेदार बात देखो, यहां पर हम लोगों को I निकालने बोले हैं, राइट? तो यहां पर ना सब कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। I मतलब क्या, हम लोग को I1 प्लस I2 निकालना है। अगर हम लोग सिर्फ ये दो इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो क्या आ रहा है? देखो I1 प्लस 2I1 मतलब 3I1 प्लस 3I2 एडिंग 1 एंड 2, 3I1 प्लस 3I2 is equal to 4, right? So I1 plus I2 is equal to 4/3. That's the answer. 4/3 ampere. That is the answer. Fair? Question number 16 done. सर কিন্তু যদি একবার I1 টা নিয়ে করি হ্যাঁ। তারপর আবার I2 টা নিয়ে করলাম তখন দুটোকে অ্যাড করি হ্যাঁ সেটা করা যায়। ভুল কেন? আমাকে I1 plus I2 টা বার করতে হবে। কেন হলো? এরকম ভাবে যাচ্ছে, একবার এটা নিয়েছি এই লুপটা, তারপরে আবার একবার এই লুপটা নিয়েছি। তুমি যেখানে দুটো সেল কি নিয়েছো? কেটে গেল কি করে দুটো? দুটো তো সেম ডিরেকশনে আছে। এখানে তো পোটেনশিয়াল রাইজ হচ্ছে, সেজন্য ভুল হয়েছে। বুঝতে পেরেছো? ওটাই ভুল হয়েছে। 2/3 আসলে দুটো অ্যাড হয়ে 4/3 হয়ে যাবে। क्वेश्चन नंबर 16 डन। अच्छा 17 डिराइवेशन है। 17 में लिसन, 17 में सिर्फ I इक्वल टू NAVD का डिराइवेशन करना है। मतलब
जो जे है लास्ट में जे से रिप्लेस कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब पूरा जो डिराइवेशन है ना, वो पूरा डिराइवेशन करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखाना है कि एक कंडक्टर में से अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया का, अच्छा बता ही देते हैं 17 में सिर्फ ये दिखाना है कि ये कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इधर, I इज इक्वल टू क्या होता है dq dt, सो dq इक्वल टू I इंटू dt, ठीक है। सो ये जो dq है ये क्या हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कोई एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन में से अगर उसका vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर vd है, देन ये जो डिस्टेंस dl है, ये dl डिस्टेंस में से कितना टाइम लग रहा है, dl डिस्टेंस में से dt टाइम, सो कितना वो चार्ज क्रॉस करेगा, vd इज इक्वल टू dl dt, सो dl इक्वल टू vd इंटू, समझ में आया, vd इंटू dt, ठीक है। अब ये क्या निकला, ये dl निकला और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a है, सो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, a इंटू dl, दैट इज a इंटू vd इंटू dt, ये वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n, सो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू na vd इंटू dt, ठीक है। देयरफॉर dq इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स, सो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज e है, सो इट विल बी na v dt इंटू e, देयरफॉर I इज इक्वल टू dq dt, तो dq dt 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 कैंसल्स, na e vd, na e vd, this is I. Now they didn't ask you to find out I, they asked you to find out j is I by a, so इसको डिवाइड कर देंगे तो n e v d, ठीक है। दिस वोंट गिव यू फुल मार्क्स, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया I क्या है, I क्या है और J क्या है, ये सब मेंशन नहीं किया है, सो सारा चीज मेंशन करना पड़ेगा। करंट इज गिवन बाय where q is charge and t is time, हो गया। नेक्स्ट यहां पर हम लोग dl यूज किया है, ठीक है। dl क्या है, इट इज अ स्मॉल डिस्टेंस traveled by electrons in dt time, in dt time, ठीक है। dl मेंशन हो गया, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेंशन किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेट a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये मेंशन हो गया। और क्या बचा है, n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n, ये वाला मेंशन हो गया। अब तुम्हारे पास कुछ मेंशन करने का नहीं है, फाइनली देयरफॉर करंट डेंसिटी इज J इक्वल टू I by A, राइट, दिस विल गिव यू फुल मार्क्स, अब फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी अगर डिनोमिनेशन मिस हो जाता है तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स, सारा डिनोमिनेशन क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अच्छा, टॉरॉइड इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 18 इज अ क्वेश्चन ऑन टॉरॉइड। टॉरॉइड निकालने का डिराइवेशन एकदम इजी सिंपल सा स्टेप्स डिराइवेशन है, সেটা করতে পারিস নি, কিচ্ছু পড়ে আসে না, হ্যাঁ কি ওটাই ছিল, হ্যাঁ সিরিয়াসলি ওটা লিখেছে, আমি ওটাই লিখেছি, এটা একটা টরয়েড, ठीक है। ये टॉरॉइड में you need to take the Amperian loop, this is the Amperian loop, Amperian loop,
तो लेट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, टर्न्स इज इक्वल टू n एंड लेंथ ऑफ एम्पेरियन लूप is equal to 2 pi r. Length of amperian loop is 2 pi r. So number of turns per unit length is n by 2 pi r. So that's it. बुक बनी तो ভাল লাগবে রাস্তা দিয়ে যাবি n is equal to 2 pi r, sorry n by 2 pi r, sorry number of turns is n by 2 pi r. ये किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल n से. स्मॉल n gives you the number of turns per unit length. ठीक है. So अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl is equal to mu naught into I included. अब I included कैसे निकालेंगे? देखो करंट इन ईच टर्न, current in each turn is equal to I. Therefore, total current included is equal to n into I. बस और कुछ नहीं. Number of turns, total number of turns कितना दिया हुआ है? n. So total current included is सर मैं लिख लिया सर, ये तो है ही नहीं हम लोग का। है ही नहीं सर। total current included is ni. Therefore, b into close integration of dl is equal to mu naught into I included. এই যে ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন অফ dl, এটা কি? ইট ইজ দ্য সার্কামফারেন্সিয়াল লেন্থ. সার্কামফারেন্সিয়াল লেন্থ মানে কত? 2 pi r is equal to mu naught into I included is ni. তাহলে b comes out to be mu naught n by 2 pi r into I. এই n by 2 pi r টা কি আমরা বার করেছিলাম? স্মল n. So it is mu naught n. ওই একটু ভুলিয়ে গেলে তো সব লাড্ডু, একটু ভুলিয়ে গেলেই সব লাড্ডু। আর নাম্বার অফ টার্নস পার ইউনিট লেন্থ, টোটাল নাম্বার অফ টার্নস সবকিছু মেনশন করা আছে। কারেন্ট I মেনশন করা আছে, B ইজ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড, ম্যাগনেটিক ফিল্ড, B is the okay. Now this question number 21, this is a very important question. See, it says that two circular loops A and B, each of radius 3 meter, are placed coaxially at a distance of 4 meter. इसका मतलब क्या है? ये एक एक्सिस है, यहां पर एक लूप प्लेस किया गया है और यहां पर दूसरा लूप प्लेस किया गया है। दोनों का रेडियस ही कितना है? 3 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर है। एंड दोनों कोएक्सियली प्लेस किया गया है, लेकिन इसका सेंटर से इसका सेंटर तक डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर, राइट? अब पूछा है कि इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे आर कैरिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर ये क्लॉकवाइज करंट कैरी करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट कैरी कर रहा है, ठीक है? दे आर कैरिंग द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब देयर मैग्नेटिक फील्ड्स विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। दे आर सेइंग फाइंड द नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप ए, मतलब टोटल फील्ड कहां निकालने वाले हैं? ए में, लूप ए का सेंटर में, ठीक है? अब देखो लूप ए का सेंटर में ए भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और राइट, सो ए के लिए वो सेंटर होगा, लेकिन बी के लिए वो एक्सिस होगा, राइट? तो बी ए वो क्या होगा? बी ए विल बी म्यू नॉट आई बाई 2r, राइट? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है? तो ये क्या होगा? म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर इंटू आई, कितना करंट एम्पियर, कितना करंट बोलो? 3 एम्पियर। इसमें 3 एम्पियर करंट है और इसमें 2 एम्पियर करंट है, ठीक है? सो म्यू नॉट आई बाई 3 इंटू 2 इंटू इसका रेडियस भी 3 है, राइट? सो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है। लेकिन बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
द सेकेंड लूप, ये लूप भी है, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। याद है ऑन द एक्सिस, इसका डिराइवेशन भी एक है, हाँ सर, राइट। वो नीचे तो 23 में इसका डिराइवेशन है। सो ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से वैल्यू कितना आना चाहिए, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू आई है, इसका आई कितना है 2 एम्पियर है, और आर स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर बाई नीचे आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर नहीं 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सो देखो 2 कैंसल्स, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है मालूम है, 5 स्क्वायर, राइट। 5 स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 क्यूब हो जाएगा, राइट। 5 क्यूब इज 10 टू द पावर 125। सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 36 बाई 125 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। लेकिन इसका और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो देयरफॉर B equal to BA minus, so this will be pi into 10 to the power -7 taken common, 2 minus 36 by 125. Make the calculations and that will be your answer. This will be your final answer. Is that clear? So what did we do? A के लिए उसका सेंटर में निकाले, लेकिन B के लिए कहां पर निकाले, इसका सेंटर में, ठीक है। तो इसलिए ये वाला कैलकुलेशन है। Question number 22 just says that a horizontal wire AB of length L and mass M carries a current I1 free to move in vertical plane and H over another parallel long wire CD। तो ये CD है और ये AB है, कितना हाइट ऊपर है, H हाइट ऊपर है, एंड दिस AB इज सस्पेंडेड फ्रीली। सस्पेंडेड फ्रीली मतलब क्या, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। अब इसके ऊपर क्या क्या फोर्स काम करेगा, उसका अपना वेट नीचे काम करेगा mg, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऊपर काम करेगा। सो मैग्नेटिक फोर्स विल बैलेंस mg, दैट्स इट, यही बैलेंस करना पड़ेगा। हेलो, वेल, सो देयरफॉर FB इज इक्वल टू mg। अब ये FB क्या है, फोर्स इज म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई D। D क्या है यहां पर, D इज द हाइट H इज इक्वल टू mg। सो वो D नहीं होगा, वो H होगा, जितना हाइट दिया हुआ है वो हाइट H होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। So this is the condition for equilibrium. Condition for equilibrium, ठीक है। And what is the force acting per unit length? Force acting per unit length is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi h. This is the force acting per unit length, ठीक है। अच्छा, 23rd जो है, क्वेश्चन नंबर 23, ये वाला फॉर्मूला का डिराइवेशन है। क्वेश्चन नंबर 23 इज डिराइवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ये भी प्रॉपर्ली तुम लोगों को लिख के डिराइवेशन करना है, एंड दिस फॉर्मूला डिराइवेशन इज इंपॉर्टेंट। दिस फॉर्मूला इज इटसेल्फ इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला का डिराइवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड 24 इज द लास्ट क्वेश्चन। नहीं करते सर, शैल आई रब दिस, वो रब कर दे ना, कोनटा, राइट এটা এটা তো বুঝছি। Now see, question number 23 is derivation। 23 is derivation, ठीक है। 24 में बोला है there is a current carrying wire, carrying current along the given direction, and there is a square loop there is a square loop
this distance is L and this distance, length of the edge length is also L. Now this is carrying a current, loop is carrying the current in the given direction, and so the current in this wire is I1 and the current in this loop is I2. Okay, now you can understand that for this loop, this part and this part does not experience any force. Why? Because they are perpendicular to this wire. Only these two parts will experience force. But you know, when the current are being carried along the same direction, they attract each other. When the current move in the opposite direction, they repel each other. So ये दोनों के लिए इधर ये वाला पार्ट इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F1, but this part will experience the force on the opposite direction. So जो net force हम लोगों को दिया हुआ है ना, it is F1 minus F2. The net force which is given F, it is F1 minus F2. So how do we find out the value of F1 and F2? देखो F1 क्या है, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. F1 is mu naught I1 I2, ये L जो है यहाँ पर कैपिटल L है, by distance is 2 pi, this distance is L, but F2, अच्छा यहाँ पर कितना है ये कैलकुलेट कर लेते हैं. L cancels, mu naught I1 I2 by 2 pi, और F2 कितना है, it is mu naught I1 I2 into L by 2 pi. ये डिस्टेंस यहां से यहां तक लेना पड़ेगा. दिस इज L plus L, हम इसका ड्राइंग 2L. ठीक है, बना लो, बात मत करो. L plus L 2L हो जाएगा. सो यहां पर क्या आएगा, L cancels, mu naught I1 I2 by 4 pi. So therefore net force is mu naught I1 I2 by 2 pi minus mu naught I1 I2 by 4 pi. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो mu naught I1 I2 by 4 pi ही मिलेगा. You understand this? अब बोला है कि अगर F ये फोर्स है तो सिर्फ NO पार्ट ऑफ द वायर, MNOP, ये NO पार्ट ऑफ द वायर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. सो फोर्स experienced by NO is given by what? F2. ये जो F2 फोर्स निकाला था, यही तो NO का फोर्स था ना. F2 जो फोर्स था वो NO का ही फोर्स था ना. सो F2 is equal to कितना, mu naught I1 I2 by 4 pi. So isn't that same as F? देखो, isn't that same as F? So this is equal to F. So the answer will be F. This is the answer. मतलब नेट फोर्स जितना है उतना ही फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा. ठीक है, सो नाउ यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट द आंसर्स प्रॉपर्ली.